हमें सोचना कैसे मिली। आज 15 अगस्त हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए। एक्चुअली वी गैदर हियर जस्ट टू सेलिब्रेट 15 अगस्त with a great pump and show, but we should know that actually what is responsibility, what is the liability of here, actually how we can give, how we can service to the name of country, to the name of India. This is the very great question. Everybody must know that why we have problem, why we have corruption, why we have poverty, why we have many problem in our country. This is the great question. Still many people they are poor. अगर आप एक ऑफिसर हो, if you are officer of this country, if you are teacher of this country, if you are doctor of this country, if you are lawyer of this country, so my dear friends, sister and brothers, countrymen, you have to service honestly. You have to service honestly to the name of country, to the name of India, without taking single rupees of the bribery. बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपको पैसा लिए हुए क्या करना है? देश की खिदमत करना है, देश के काम को करना है, देश की सर्विस करना है। तो आप ईमानदारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आज़ादी का काम कर रहे हो। आज जो आज़ादी हमें मिली, हमें जानना चाहिए कि किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, जो आप अपनी जान की बलिदान दे रहे हैं, तो उनके लिए आज़ादी का दिन नहीं है। आज अगर हमारे पास पैसा है तो हमें दूसरों की मदद करना है। इफ़ वी हैव मनी तो एक्चुअली वी हैव टू हेल्प अदर पीपल, बेगर, निडी, गरीबों की, मोहताजों की, लाचारों की क्या करना है? मदद करना है। अगर हमारे पास पैसा है, अगर हम टीचर है तो गरीबों की फ्री में क्या करना है? सर्विस करना है। यही हमारा देश कहता है। अगर हम डॉक्टर हैं तो जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी क्या करना है? फ्री में मदद करना है। अगर हम पुलिस ऑफिसर है तो हमें बगैर किसी करप्शन, बगैर किसी रिश्वत के लिए हुए क्या करना है? ईमानदारी से काम करना है। तो ये आज़ादी है। हमें आज़ादी, हमारा संविधान, हमारी आज़ादी हमसे यही कह रही है। एक्चुअली आई गोना टॉक अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, more essential, significant topic. This is very great, remarkable, amazing day in the history of India, in our country. Today the topic which I selected today, the point which I want to tell you, ladies and gentlemen, everybody must be excited to know about this festival ki actually which I want to talk you. This is how much great, how much important, how much valuable, significant, precious in the history of the India, in our life. You could not imagine, ladies and gentlemen, by sitting here you could not realize, dream how much great day today. My dear friend, sister and brothers, today our topic is 15 August, 15 August, Independence Day. You know, everybody aware, everybody knows very well what is Independence Day, what is 15 August, what is 15 August. So today I want to discuss, I want to talk value of the 15 August, importance of the 15 August in the history of the India. Ki why do we celebrate 15 August? Why this is important, great, paramount in the history of the India. Today I tell you, I describe you, I will track you completely. Why is it important for everyone? Ladies and gentlemen, you must know that history of the India. You must know that the power of the India. You must know that independence history of the India. What is the story happened behind celebration of the 15 August? So my dear friends, आज का हमारा टॉपिक क्या है? 15 अगस्त है और हम 15 अगस्त के बारे में क्या करने जा रहे हैं? कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें आज के सेशन में क्या है सीखने को मिलने जा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉट्स ऑफ थिंग्स, आइडियाज, पॉइंट, हिस्ट्री एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन. In this session, this point, this idea absolutely help us to speak, to talk, to know actually power of the India, actually important of the India, value of the India, कि भारत हमारे लिए कितना महान है. How much great India for us, how much important India for us. We could not imagine, we could not dream actually in our life कि how much important India in our life. There is a one question actually. We are living in India, we are freedom of this country, we are countrymen of this country. We have full freedom, full power, full authority to enjoy, to talk, to start business, to talk, to live here. But do you know, my dear friends, how did get free India? How we got actually freedom, how we found freedom from British government? Do you know? Definitely, if you study history of the India, you can know very well कि how much
Actually, it was difficult for Indian people, for our freedom fighter, for our Aba Ujdad, for our people. Actually, they sacrificed their entire life to get free India from British government. This is the Freedom Day. This is the 15 August. This is the 15 August, ladies and gentlemen. But you should know that ki how many great sacrifices actually we got. Now we got more than 200-300 years continuously. Our freedom fighter, they sacrificed their entire life, their innocent baby children, their beautiful wife, to get free India. Just they want, they dedicated, they contributed their entire time, entire life for their country. Ladies and gentlemen, I would like to share, I would like to mention many freedom fighters. Do you know about the Bhagat Singh? देश को आज़ाद करने के लिए बड़ी खुशी से उन्होंने क्या किया, फांसी के फंदे को क्या किया, चूमा। बस इसलिए चूमा कि देश की आज़ादी हो चाहते थे, देश को आज़ाद कराना चाहते थे, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते थे। That's why actually he very happily, you can say that, he hanged। फांसी के फंदे पे क्या किया, उन्होंने अपने आप को लटका दिया और अपनी जान को क्या किया। हजारों लाखों लोग क्या किए, देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की क्या की, बाजी लगाई। आपको मालूम होगा बहादुर शाह जफर की अगर हम बात करें, इफ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर मिस्टर बहादुर शाह जफर, एक्चुअली व्हेन ही वाज सेंट इनटू द जेल ऑफ रंगून, जब उन्हें रंगून की जेल में रखा गया था और उनके सामने उनके बेटों का सर काट के रखा गया, तकरीबन 19 से 20 लोगों, उनकी फैमिली के परिवार को नाश्ते के तौर पर उन्हें दिया गया। और अंग्रेज ने उनसे क्या कहा, व्हाट डिड एक्चुअली अंग्रेज, इंग्लिश मैन सेड, अंग्रेज ने उनसे क्या कहा, अब दमदमे में दम नहीं, अब दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, टेक हिंदुस्तान की चलेगी। टू टेल यू कि मेनी ग्रेट फ्रीडम फाइटर, दे सैक्रिफाइस देयर इंटायर लाइफ टू गेट फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई वी आर फ्री हियर। और अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मोमेंट massacre of the India and moment of the India, war of the India, difficulties, problem, crisis, actually what happened during this period. So really that's a very amazing, very sorrowful for everyone, for every Indian people. Nobody can ignore, nobody can actually think, nobody can realize, nobody could actually dream such a great difficulties, problem. बहुत सारी घटनाएं घटी देश को आज़ाद करने के लिए। अगर हम एक घटना को जिक्र करना चाहें, if I would like to mention here, जलियांवाला बाग, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और हिंदुस्तानियों ने क्या किया, त्यौहार मनाने के लिए अमृतसर पंजाब में क्या हुए थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अपना त्यौहार मना रहे थे। जब इस बात को पता, जनरल डायर जो अंग्रेज़ों का जनरल था, जब इस बात की पता चली तो उन्होंने क्या किया, अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पे पहुँचा और यकायक क्या किया, ऑर्डर किया। तकरीबन क्या 379, एक रिपोर्ट के मुताबिक 379 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 लोगों को क्या किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है कुछ मिनटों और सेकंडों में, जिनकी कोई गलती नहीं थी। उन मरने वालों में बच्चे भी थी, माएँ भी थी, औरतें भी थी, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी हमें कैसे मिली। आज 15 अगस्त हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए। एक्चुअली वी गैदर हियर जस्ट टू सेलिब्रेट 15 August with a great pump and show, but we should know that actually what is responsibility, what is the liability of here, actually how we can give, how we can service to the name of country, to the name of India. This is the very great question. Everybody must know that why we have problem, why we have corruption, why we have poverty, why we have many problems in our country. This is the great question. Still many people, they are poor, they are very less, we can say that they have problem. There are many bigger. We have poverty, we have nepotism, we have many problems still in our country. We found freedom after 75-60 years. Also we have many problem in our country. This time we have to service. अगर आप एक ऑफिसर हो, इफ यू आर ऑफिसर ऑफ दिस कंट्री, इफ यू आर टीचर ऑफ दिस कंट्री, इफ यू आर डॉक्टर ऑफ दिस कंट्री, इफ यू आर लॉयर ऑफ दिस कंट्री, सो माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स, कंट्रीमेन, you have to service honestly, you have to service honestly to the name of country, to the name of India, without taking single rupees of the bribery. बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपको पैसा लिए हुए क्या करना है, देश की खिदमत करना है, देश के काम को करना है, देश की सर्विस करना है, तो आप ईमानदारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आज़ादी का काम कर रहे हो। आज जो आज़ादी हमें मिली, हमें जानना चाहिए कि किसान
जो सुसाइड कर रहे हैं, जो आप अपनी जान की बलिदान दे रहे हैं, तो उनके लिए आज़ादी का दिन नहीं है। आज हमें दूसरों की मदद करना है। इफ़ वी हैव मनी तो एक्चुअली वी हैव टू हेल्प अदर पीपल। बेगर, नीडी, गरीबों की, मोहताजों की, लाचारों की क्या करना है? मदद करना है। अगर हमारे पास पैसा है, अगर हम टीचर है तो गरीबों की फ्री में क्या करना है? सर्विस करना है। यही हमारा देश कहता है। अगर हम डॉक्टर हैं तो जो लोग ज़रूरतमंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी क्या करना है? फ्री में मदद करना है। अगर हम पुलिस ऑफिसर हैं तो हमें बगैर किसी करप्शन, बगैर किसी रिश्वत के लिए हुए क्या करना है? ईमानदारी से काम करना है। तो ये आज़ादी है। हमें आज़ादी, हमारा संविधान, हमारी आज़ादी हमसे यही कह रही है कि हमें एक काम करना है, तभी हमारा देश दुनिया की सुपर पावर बन पाएगा। और हमें बात को समझना चाहिए दोस्तों। तो हम सब अगर मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम आज बताना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे देश की एक क्या है? एक अनोखी पहचान है, जिस पहचान को मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ। एक्चुअली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि अनोखी पहचान जो बिल्कुल अलग है, मैचलेस है, जिसकी कोई मिसाल नहीं दुनिया में मिलती है, कि हमारा देश जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जीविस, पारसियन यानी बहुत सारे धर्मों का क्या है? मिला के बनता है। और बहुत सारे धर्म वालों ने क्या किया? अपनी जान की कुर्बानी दी इस देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमें आज अमन और शांति का पैगाम देना है। हमें हर धर्म को जोड़ना है। हमें उनके दरमियान खुशियाँ बांटना है, ना कि उनके बीच क्या करना है? लड़ाना है। ये भी हमारा काम है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई पार्शियन है, कोई भी जात वाला है, कोई भी मजहब वाला है, हमें उसकी मदद करना है। अगर वो मजबूर है, हमें उसका साथ देना है। हमें अगर उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो हमें क्या करना है? उसकी मदद करना है। हमारी क्या है? जिम्मेदारी है। हमें अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आज़ादी के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारी काम हमें करने की क्या है? ज़रूरत है। और इस बात को हमें क्या करना है? समझना है। तो आज के दिन हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हमें ऐड करना है। एक्चुअली वी हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्फ, वी हैव टू डू समथिंग न्यू इन आवर लाइफ, वी हैव टू सैक्रिफाइस, वी हैव टू सर्विस टू द नेम ऑफ कंट्री। कुछ डेडिकेशन, कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी अपने देश के नाम पे करेंगे, तभी हमारा देश क्या है? आगे बढ़ेगा। और स्टिल हमारा देश क्या है? डेवलप कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियां को हमें ख़त्म करना है। जब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारा देश क्या होगा? आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमें दुनिया की सुपर पावर बनना है। हमें दुनिया की सुपर पावर बनना है और इसके लिए हमारे देश में लोग मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो कमी है कि इंसानियत की कमी है। हमारे देश में सारी चीज़ें पैदा हुई लेकिन इंसानियत नहीं हमारे देश में, लेकिन लगाव नहीं है। हम मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो रहा है? बहुत सारे बंटवारे, बहुत सारी गलत बातें हमारे देश में क्या है? तो हमें ईमानदारी के साथ काम करना है और मिलजुल कर काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया कैन बिकम सुपर पावर ऑफ द इंडिया। इंडिया कैन गो एक्चुअली become smarter than अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया very easily, ladies and gentlemen। तो क्या आप लोग तैयार हो? तो आपको क्या करना है? करना है, आपको प्रॉमिस करना है कि एक्चुअली हमें देश के लिए कुछ करना है। आज का दिन जो हम मनाने जा रहे हैं, इसे यादगार है। इस यादगार को हमें आपको अपने आप को बदलना है कि कैसे हम बदलें कि जो आज़ादी है सभी तक पहुँचनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे यहूदी है, क्रिश्चियन है, सब तक सब लोग आज़ाद हों। सब लोग कब होंगे? जब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो हमारा देश क्या होगा? बहुत आगे बढ़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम